नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका राज्यसभा टेलीविजन पर। लगातार आप बिहार चुनाव का कवरेज देख रहे हैं राज्यसभा टेलीविजन पर। सुबह से ही हम आपको बता रहे हैं, जो आंकड़े हमने आपके सामने रखे थे, हमारा जो एस्टिमेट था वो लगभग सही साबित हुआ है। और शायद ये बात गौरव के साथ हम कह भी पाएं कि हम काफी हद तक आंकड़ों में सही थे कि किसको कितनी सीटें मिल सकती हैं संभावित तरीके से। फिलहाल ये वो चुनाव है जिसके राष्ट्रीय जो है वो इम्प्लीकेशन, नेशनल इम्प्लीकेशंस होने वाले हैं, और वो नतीजा जिसका 1 महीने से ज्यादा से इंतजार हो रहा था वो फिलहाल हमारे सामने है। जो आरजेडी जेडीयू गठबंधन है वो सरकार बनाने की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है, हालांकि बीजेपी गठबंधन को निराशा ही हाथ लगी है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी, मेरे साथ फ्रैंक। Yes, thank you, Arfa. The tables have turned on its head, and initially, of course, the Grand Alliance or the BJP-led NDA Alliance was in front for the first 1 hour or so, but now the numbers have completely reversed, and it is the Grand Alliance which has surged ahead. And if you look at some of the figures, they've got around more than 155 seats is what they are leading in at the moment, and it looks well and clear that they would be forming the next government, and with a good majority as well. Let's now take a look at the headlines at the top of this hour. Grand Alliance takes decisive lead in Bihar, leads on over 150 seats. BJP-led NDA trails far behind. Diwali comes early for the JDU-RJD Congress camp. From Patna to Delhi, there is an explosion of celebrations. Among the heavyweights, HAMS's Jitan Ram Manji leads in Imamganj but trails in Makhdhampur. Lalu Yadav's sons Tejasvi and Tej Pratap lead in their seats. Nitish Kumar and Sharad Yadav thank the people of Bihar for their support. BJP says they will wait for the final result. And BJP President Amit Shah calls a meeting of the party's parliamentary board on Monday. Bihar results could be discussed. Well, crackers have begun to burst in India, and these visuals, of course, coming to you from the camps of the JDU, the RJD and the Congress, where celebrations or Diwali celebrations seem to have begun early. There you can see people celebrating, and of course they all know that their alliance is heading towards a victory. These visuals, of course, are from all the three centres. Earlier in the day we saw similar visuals coming to you from the BJP camp, but what happened was the numbers changed all of a sudden, and now you can see celebrations at the Grand Alliance camp. And we've got some breaking news that is just coming in at the moment. Following the Grand Alliance's resounding victory, Prime Minister Narendra Modi called Nitish Kumar to congratulate him on the win. BJP ally Shiv Sena terms Nitish as the new hero of politics and says that the Prime Minister must take responsibility for the Bihar fallout. Well, let's talk about that and put things into perspective now. Over the next half an hour, I have with me a guest in our studio right now, Pradeep Saurabh, senior journalist, Vinod Agnihotri, consulting editor of Amar Ujala, and Amit Malviya, in charge of BJP's national IT cell, also joining us from the BJP head office. Pradeep Saurabh, I'd like to start with you. You know, it seems very astonishing that the BJP, if you look at the figures and individually analyze them, that the BJP has been relegated to the third position. It is RJD which is right in front, followed by the JDU, and then of course the BJP. So this is a major setback, isn't it, for the BJP? अगर ये कहा जाए कि ये सेटबैक मैं नहीं मानता, और ये इबारत दीवार पे लिखी हुई थी लेकिन हम लोग पढ़ना नहीं चाह रहे थे, और जब ये दूध का दूध और पानी का पानी सामने आया तो अब दिख रहा है कि बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में भी इमर्ज नहीं कर पाई इस चुनाव के अंदर। और ये सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं इस पूरे चुनाव का विश्लेषण इस तरह से करना चाहता हूं कि जिससे हर बात पे कहा जाता था कि विकास का सवाल हो चाहे जो सवाल हो कि गुजरात मॉडल देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो हार है ये गुजरात मॉडल की हार है, जो कि अर्लियर संघ की और भाजपा की प्रयोगशाला थी चुनाव जीतने की। वो सारे हथियार इस बिहार के चुनाव में इस्तेमाल किए गए बीजेपी की तरफ से, चाहे वो कम्युनिज्म का मुद्दा हो, चाहे गोमांस का सवाल हो, चाहे पटाखों को बजाने की बात हो पाकिस्तान के अंदर, चाहे और आरक्षण को वापस करने का, पूरी तरह से जाति तौर पर भी पोलराइज करने की कोशिश की। तो इसको इस नजरिए से भी देखना चाहिए कि असल में जो गुजरात मॉडल था वो यहाँ पर बुरी तरीके से आकर not only the defeat of Gujarat development model, but the Gujarat model of the politics. Yes, election model, electoral politics. You know, let's take that thought to Amit Malviya of the BJP and find out what he has to say.
Amit Malviya, would you concede defeat and say that the BJP has finally lost and your tactics have not worked really in the BJP and it's time to introspect for the BJP? Well, let me start by first congratulating the Mahagathbandhan that is clearly ahead as far as the numbers are concerned at this point in time, and it's likely that they will finish first beyond the red line. Having said that, obviously it is a time for us to introspect and understand what did not work for us in this election. However, it would be very simplistic to come up with a quick analysis as my predecessors have done, because some of the issues that have been raised were not the issues that the BJP raised. Also the fact that RJD is the single largest party and not the JDU, therefore it warrants a deeper analysis to understand why that is the case. As far as the allegations that the BJP communalized the election and brought in the beef issue and the reservation issue, please let me finish and make my point. These were aspects that were brought into the Bihar election by the Mahagathbandhan leaders. They were merely responded to by the BJP. I'd be very simplistic to say that these were the reasons that led to the performance of ours as it has been. Having said that, yes, we are going to introspect. We are going to look at a lot of aspects of our election and of our campaign and understand really what did not work for us in this election. अमित मालविया जी, ये जाहिर है अच्छी बात है कि आप जो है वो सबक और संदेश दोनों देखना चाहते हैं। जैसे मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि हर हार के पीछे सबक और संदेश होता है, तो सबक तो आपने देख लिया है। फिलहाल संदेश क्या है इस चुनाव का, ये भी हम जानना चाहते हैं। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात जो कि विपक्ष लगातार ये कह रहा था कि क्या ये चुनाव नरेंद्र मोदी सरकार, एनडीए सरकार के 1.5 साल के कामकाज पर रेफरेंडम है कि क्या अब तक जो कामकाज था वो कम से कम राजनीति ने तो उसका जवाब इस तरह से दिया है, क्या आपके कामकाज का तरीका बदलेगा? देखिए, केंद्र में जो हमारी सरकार है, मोदी जी की जो सरकार है, उसके कामकाज का ब्यौरा हम अगले लोकसभा चुनाव में देंगे। ये बिहार का चुनाव था, यहाँ पे बिहार के चुनाव में बिहार के विकास के लिए, बिहार के लोगों के उज्जवल भविष्य के लिए ये चुनाव लड़ा गया। पार्टी को जो विजन थी बिहार के लिए वो हमने लोगों के सामने रखा, लेकिन लोगों की मंशा कुछ और रही और इसका परिणाम स्वरूप इसके चुनाव के नतीजे हमारे सामने हैं। ठीक है, देखिए चुनाव में आने वाले दिनों में है अमित मालविया जी, जीत और हार तो होती है, लेकिन जिस तरह से ये चुनाव लड़ा गया शायद हमेशा याद रखा जाएगा कि इस चुनाव में जिस रणनीति का इस्तेमाल किया गया, जिस तरह से कैंपेन हुआ, जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री को कैंपेन में एक चेहरे के तौर पर आगे रखा गया, ये किसी विपक्षी पार्टी ने नहीं किया, ये बीजेपी ने किया। नरेंद्र मोदी साहब का चेहरा आगे रखा गया चुनाव में, तो ये जीत और हार तो उनके ऊपर हुई। मैं आपको एक बात स्पष्ट करना चाहूंगा, इस देश में पिछले 10 साल में ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं जिनका पॉपुलर अपील नहीं था, इसलिए हमें शायद ये आदत नहीं रही कि प्रधानमंत्री अपनी पार्टी के लिए चुनाव का प्रसार करे। हमें इस बात को समझ लेना चाहिए कि नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, वो देश के प्रधानमंत्री हैं और वो हमारी पार्टी के लिए हर प्रदेश में कैंपेन करेंगे। लेकिन किसी भी प्रदेश में जब चुनाव लड़ा जाता है तो टीम भाजपा लड़ती है, उसमें प्रदेश के नेता, राष्ट्रीय नेता अपनी भूमिका निभाते हैं। ये प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल पे या उनकी सरकार पे कोई वर्डिक्ट है ऐसा कहना, इट बी अ वेरी सिंपलिस्टिक एनालिसिस होगी। If the BJP had won, it would have been Amit Shah's and the Prime Minister's victory. But now the BJP is losing; it's not their fault. Are you happy with that analysis? That is the practice of every political party. You see that in the Congress, when Congress wins, the victory of Sonia Gandhi and Rahul Gandhi में एक बयान आया था राजनाथ सिंह का एक बयान आया था बीच में, जिसमें तीसरे चरण के बाद ये कहा गया था कि अगर भारतीय जनता पार्टी हारती है या जीतती है तो ये अमित शाह अध्यक्ष बने रहेंगे। ये इस बात का संकेत था साफ साफ कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के मध्य में ही अपनी हार को स्वीकार कर लिया। आप बहुत तजुर्बेकार पत्रकार हैं, आपने कितने सारे ऐसे चुनाव अपनी नजरों के सामने गुजरते देखे। मैं आपसे जानना चाहती हूं कि जो ये दलील यहां पर दी जा रही है कि चूंकि भारत के पास किसी और पॉलिटिकल पार्टी के पास अब तक इतना लोकप्रिय प्रधानमंत्री नहीं रहा, इसलिए वो कभी उन्हें चुनाव में नहीं लेके गए राज्य के, कितना दम है इस दलील? देखिए, इसमें कोई दलील में दम नहीं है। अगर इन्होंने जवाहरलाल नेहरू
को पढ़ा नहीं है या देखा तो नहीं होगा, इंदिरा गांधी के दौर को नहीं देखा होगा। देश के अंदर एक से एक लोकप्रिय नेता वो जेपी आंदोलन, अपने नेता अटल बिहारी वाजपेयी को देख लें, जो हर क्या कहते हैं समुदाय में अल्पसंख्यकों ने अलीगढ़ से उनके फेवर में क्या कहते हैं कि एक कैंपेन चलाया था। तो ये एक कहने की बात है और ये इनको समझने की जरूरत है कि ये जो मुद्दा था कि ये बार बार बिहार के लोग कह रहे थे और ये मुद्दा भी बनाया गया कि 2 गुजरातियों को बिहार से भगाना है। तो मैं बार बार जिस चीज को कहना चाहता हूं कि ये गुजरात इलेक्शन मॉडल, गुजरात पॉलिटिक्स मॉडल की डिफीट है बिहार के अंदर। इसके अलावा भी कि जो जुमलेबाजी हुई थी इस चुनाव के अंदर 2014 में, जिसको जुमला कह दिया था, चाहे काला धन वापस करने की बात हो या दूसरे सवाल हो, वो जुमला था। जुमले की जनता ने जुमले को अस्वीकार कर दिया बिहार की जनता ने कि जो आपने 16 महीने में ये किया और क्या हुआ, ये बताइए। कब आपको ये लगने लगा कि ये चुनाव अब महागठबंधन का चुनाव हो गया? कब टर्न अराउंड आपको नजर आया? देखिए, टर्न अराउंड तब नजर आया जब मैं बिहार गया। बिहार जाने से पहले मुझे भी लगता था शायद नरेंद्र मोदी की अपील, केंद्र सरकार की सरकार, बदलाव का नारा, जंगल राज का डर और केंद्र और राज्य में एक ही पार्टी की सरकार हो, ये चीजें अपील कर जाएंगी तो हो सकता है कि इंडिया जीत जाए। लेकिन जब मैं बिहार गया और जब पटना शहर में मैंने घूमना शुरू किया, वो पटना शहर जहां लोकसभा चुनाव में थम्पिंग मेजॉरिटी से बीजेपी को मिला और बीजेपी का गढ़ है पटना शहर, वहां जब मैं 10 लोगों से बात करता था उसमें 5 आदमी नीतीश कुमार का नाम लेते थे, तो मुझे लगा कि मामला कहीं कुछ। अब देखिए नंदकिशोर यादव पीछे चल रहे हैं जो 60,000 वोटों से जीते थे। और उसके बाद जब मैं बिहार के और इंटीरियर इलाकों में गया, जहानाबाद, गया, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, सिवान, छपरा, इन सारे इलाकों में गया और वहां जब लोगों से बात की तो उसमें 3-4 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण थी जो दिल्ली मीडिया में चर्चा नहीं थी। जैसे अभी प्रदीप जी ने जुमले की बात की, काला धन का मुद्दा गांव के लोगों में वाकई बहुत बड़ा मुद्दा था। हजारों के साथ काला धन वापस नहीं आया, हमारे अकाउंट में पैसे नहीं आए। और एक जगह टेलीग्राफ में एक स्टोरी भी छपी है कि एक जगह कुछ नेताओं ने कह दिया कि पैसा तो आ गया था, बैंक वालों ने नहीं दिया, तो लोग बैंक मैनेजर के पास चले गए उसे झगड़ा करने। ये मुद्दा, दाल का मुद्दा, दाल की उसका मुद्दा, सरसों का तेल है, सरसों के तेल का मुद्दा। Hold that thought. Let's go across to Meme of the Afzal of the Congress, who's joining us on the program as well. Firstly, congratulations. Your alliance has, seems like it's on the way to victory and a thumping victory there in Bihar. But, several people have said that the Congress has ridden piggy bank on the JDU and the RJD, and that's why it has managed to do better than what it did in 2010. Are you happy or are you, content with that analysis? No, I am happy that people are realizing कि कांग्रेस पार्टी की अपना एक परसेप्शन जो है वो बहुत उसने इस जीत में बड़ी मदद की है। देखिए, बिहार के बारे में अभी बहुत सारी बात आप लोगों ने की। मैं आपको खास तौर पे ये बात बताना चाहता हूं कि अमित शाह, पहली बात तो मैं कहूंगा कि प्रधानमंत्री जी और अमित शाह, इन दोनों की सीधी सीधी हार है। कितना भी आप इसे नकार लें, पार्टी को जिम्मेदारी दे दें, लेकिन चूंकि उन्होंने इसको मुद्दा बनाया था। भारत की तारीख में पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने किसी एक स्टेट में इतनी ज्यादा सभाएं की हैं। 26 सभाएं तो उन्होंने इलेक्शन के दौरान की थी और 4 सभाएं उससे पहले की थी, गोया 30 सभाएं उन्होंने की। और उसमें उन्होंने जो मैसेज दिया वो मैसेज बड़ा खराब था। वो मैसेज क्या था? प्रधानमंत्री की जबान नहीं लगती थी, लगता था कि लोकल लीडर बोल रहे हैं। उनके मुकाबले पे जब कभी नीतीश कुमार बोलते थे तो लगता था कि वो एक बहुत जिम्मेदारी के साथ एक चीफ मिनिस्टर, या वो जबान जो प्राइम मिनिस्टर को बोलनी चाहिए वो जबान वो बोलते रहे। नहीं, ये बातें तो चली ठीक है, बीजेपी की रही, दूसरी बात कर ली जाए। 4 सर्वे मुझे याद है आए थे साहब, और सबने कांग्रेस पार्टी की भी थोड़ी बात कर ली जाए। क्या एक विपक्षी दल के तौर पर गठबंधन की बात तो ठीक है, बिहार का चुनाव भी ठीक है, लेकिन अब शाम को बैठ के चर्चा क्या होगी? क्या वाकई कांग्रेस पार्टी के अंदर एक विपक्षी दल के तौर पर एक नई एनर्जी, नई ऑक्सीजन आपके अंदर आई है? देखिए, नई ऑक्सीजन और नई एनर्जी हमारे पास उसी वक्त आ गई थी जब भारतीय जनता पार्टी ने गलतियां करना शुरू की थी और हम लोग बराबर कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर मैं अभी देखिए, टॉलरेंस और इंटॉलरेंस को लेकर के बहस शुरू हुई। भारतीय जनता पार्टी और उससे जुड़े हुए लोग क्या कर रहे थे? बीजेपी पावर में होने के बावजूद कांग्रेस का जवाब दे सकती थी, लेकिन वो जवाब देने की बजाय उन्होंने अपनी बंदूक को अनुपम खेर के कंधे पर रख करके चलाने की कोशिश की। मैं समझता हूं कि जो पूरी राजनीति टॉलरेंस और इंटॉलरेंस की है,
आप बहुत सारे वाकयात कह सकते हैं, इसमें मोहन भागवत जी के बयान को कह सकते हैं, बीफ के मामले को कह सकते हैं। उसके अलावा जिस तरह के बयानात दिए, प्रधानमंत्री ने कह दिया कि बैकवर्ड का जो रिजर्वेशन है वो उठा करके एक पर्टिकुलर फरके को, जिसका मतलब सीधा सीधा था, मुसलमानों को दे दिया जाएगा, जबकि ऑलरेडी बैकवर्ड क्लास का मंडल कमीशन के तहत जो रिजर्वेशन है उसमें मुस्लिम बैकवर्ड क्लास शामिल था। ठीक है, लेकिन उन्होंने ये बात कही जिससे लोगों में नाराजगी हमें ये जबरदस्त बताइए पैदा हुई। मुझे तो कि उनकी क्या टोटल कांग्रेस पार्टी, क्या विपक्षी दल के तौर पर जिस तरह से बात हो रही थी कि अभी जैसा एक विपक्षी दल को होना चाहिए, खासकर इतने बड़े मैंडेट की जब सरकार बनी हो, तो एक नर्वसनेस जो साल डेढ़ साल तक नजर आ रही थी कांग्रेस पार्टी के अंदर, क्या वापस आपके अंदर इतना दम आएगा कि वापस एक विपक्ष की भूमिका निभाने को तैयार हैं? क्या एक प्रिंसिपल ऑपोजिशन की तरह भूमिका निभाने को अब आप तैयार हुए? कुछ दमखम आया है, कुछ एनर्जी आई है? देखिए, हम 44 हैं सिर्फ पार्लियामेंट में, 44 हैं लोकसभा के अंदर, लेकिन विपक्ष की भूमिका मैं इस बात को मानता नहीं हूं आरिफा जी, जो आप कह रहे हैं क्या अब निभाएंगे। हम तो पहले दिन से निभा रहे हैं, और हमने, ये वो पार्टी है जो कहा करती है, बीजेपी कहती थी कांग्रेस मुक्त भारत, आज जरा कह के तो दिखाएं। देखिए, जो लैंड एक्विजिशन बिल लेकर के आए थे, कांग्रेस पार्टी उसी वक्त विपक्ष का सही रोल अदा कर रही थी, उसने सारे विपक्ष को इकट्ठा करने का काम किया। अभी जो देश के अंदर माहौल को खराब करने की कोशिश की, उसके खिलाफ पार्लियामेंट से लेकर के राष्ट्रपति भवन तक मार्च किया, और उससे पहले भी बराबर हमारे यूनिट अलग अलग स्टेट्स के अंदर और दिल्ली के अंदर भी हमारी पार्टी बिल्कुल एक्टिव नजर आती है। और हम ये वादा करते हैं आपसे और देश की आवाम से कि जो एक पॉजिटिव अपोजिशन का रोल है वो कांग्रेस पार्टी ही जानती है। जी, ठीक है। हम लोग कभी भी अपने रास्ते से नहीं भटके हैं। अगर अब अगला सवाल राहुल गांधी, हमने उस जबान का इस्तेमाल करने से परहेज किया है जो आमतौर पर भारतीय जनता पार्टी के मिनिस्टर्स राहुल गांधी पे पूछूंगी, लेकिन फिलहाल दूसरे मेहमानों का रुख करती हूँ। विनोद अग्निहोत्री जी, ये बताइए, हम राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे कि बिहार से बाहर बिहार ने क्या बदला है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूं जो बिहार की जड़ों में जो खराबियां हैं, जिस तरह से अभी नेता कह रहे थे कि लोग ये उम्मीद भी नहीं करते थे कि विकास होगा या विकास की बात होगी, आप जाके वहां देखें बहुत कुछ बदला है, लेकिन जो बुनियादी मुद्दे हैं जैसे लैंड रिफॉर्म्स जो होने चाहिए, जिस तरह का एक सोशल मूवमेंट चाहिए, जिससे जो जाति की जकड़नें हैं वहां पर, रूरल सोसाइटी में जितना ट्रेडिशनलिज्म अभी भी नजर आता है, आखिर इसकी बागडोर कौन संभालेगा? नहीं, देखिए, आपका बिल्कुल, आपने बड़े जायज सवाल उठाए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिहार बिल्कुल जड़ है। बिहार भी उसी तरह आगे बढ़ रहा है जिस तरह देश के अन्य इलाके बढ़े हैं। वो बिहार 1990 का बिहार नहीं है। अब याद कीजिए, 1990 के और 80 के दशक में प्रदीप जी बैठे हुए हैं, बिहार से हर हफ्ते खबर आती थी कि फलाने गांव में इतनी बस्तियां जला दी गई, जाति संघर्ष की खबरें आती थी, रणवीर सेना, लोरिक सेना, ब्रह्मर्ष सेना, सेनाएं आपस में लड़ती थी, नक्सलियों का आतंक था, बहुत सारी चीजें थी। आज बिहार में सब नहीं है। इसके अलावा बिहार के किसी भी इलाके में, पटना से आप जाइए, 4 घंटे से 5 घंटे में कहीं पहुंच सकते हैं। कहा ही जाता है कि सिर्फ उसके लक्षणों को क्रश किया गया है, उसकी वजह बाकी है अभी। समय चाहिए। देखिए, जिस जहां बिहार था वहां से यहां तक लाने के लिए समय चाहिए था। मुझे लगता है अब जिन बातों पर इशारा आप कर रही हैं, अब वो समय नीतीश कुमार को मिला है कि अब वो उन पर ध्यान दें, उन जड़ों पर। जैसे बहुत बड़ा काम किया नीतीश कुमार ने, जिसको मुझे लगता है शायद देश के किसी मुख्यमंत्री ने काम नहीं किया, जो स्कूली शिक्षा का काम किया है। और जो आज बिहार एक ऐसा राज्य है जहां 50% से ज्यादा बच्चियां स्कूल जाती हैं। आप सोचिए कि, और साइकिलों पर और नीली ड्रेस पहन के और गुलाबी ड्रेस पहन के लड़कियां झुंड के झुंड निकलती हैं, क्रांति से नजर आती है, क्रांति नजर आती है। वो बच्चियां जो घर से बाहर नहीं निकलती। अमित मालवीय जी, कहा जा रहा है कि अब जो विंटर सेशन आएगा उसमें कहीं ना कहीं जो पटाखे छूट रहे हैं आज जेडीयू के, आरजेडी के फेवर में, कहीं ना कहीं उसकी चिंगारियां, उसका जो असर है वो संसद में भी नजर आएगा। देखिए, it would be very unfortunate if the JDU and the RJD use the Bihar mandate to disrupt the working of the central government. It would be an insult to the mandate that has been given to the BJP in 2014. I hope better sense will prevail and they will allow the central government to continue with the process of legislation which is in the benefit of this country. However, if they continue to obstruct the parliament and do not allow the central government to work as they have done in the past, perhaps at the right time the people of this country will respond to them. नहीं अमित जी, जो मैनेजमेंट स्किल्स की बात हो रही है, जो शायद उतना अच्छे तरीके से नजर नहीं आया है पिछले 1.5 साल में पार्लियामेंट में, जिस मैनेजमेंट की जरूरत है, आपको लगता है कि अब और ज्यादा मैच्योरिटी के साथ काम करना होगा क्योंकि ऑपोजिशन जो है वो मजबूत हो रहा है? देखिए, हमारे पार्लियामेंट में जितने भी लीडर्स हैं उन्होंने ओपनली ये कहा है कि हम ऑपोजिशन पार्टीज के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। उनके जो भी सुझाव, उनके जो भी इनपुट्स हैं, हम उनको लेके
लेजिस्लेट करना चाहते हैं। बट अगर ऑपोजिशन ऑब्स्ट्रक्शनिज्म में ही बिलीव करती है और लेजिस्लेटिव प्रोसेस को बाधित करने में ही उनको अपनी जीत नजर आती है, क्योंकि उनको लगता है कि इसको रोककर ही वो सरकार को नीचा दिखा सकते हैं, तब इसका निर्णय जनता करेगी जब सही टाइम आएगा। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि ऑपोजिशन एक कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन रहेगा और देश के प्रोग्रेस में वो अपनी बाधा नहीं बनेंगे। चुनाव खत्म हो चुके हैं, आगे देश को चलाने का काम है, देश के लिए काम करने का काम है, देश के लोगों के हित के लिए काम करने का है। ये चीज ऑपोजिशन को समझना चाहिए। Well, that's for the opposition to decide, and that will be known in a few days' time, of course, when the winter session of Parliament begins in a couple of weeks. But in the meantime, of course, JDU Chief Sharad Yadav has spoken to us. Let's quickly listen in to what he had to say. हमारे साथ जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव जी हैं। शरद यादव जी, इस जनादेश को आप क्या मानते हैं, कैसे इसको परिभाषित करेंगे? देखिए, जिस दिन गठबंधन बन गया था और हमको यकीन और पूरा विश्वास था कि हम बिहार का चुनाव जीतेंगे। बीजेपी ने भी अपने चुनाव प्रचार में कहा और आप लोगों ने भी कहा कि बिहार के चुनाव में जो जनादेश आएगा उसका राष्ट्रीय राजनीति पर गहरा असर होगा। किस तरह का असर अब आप देखते हैं? देखिए, मैं अभी तो नहीं कहना चाहता हूं कि नया राह और रास्ता खुल गया है। आगे क्या होगा क्या नहीं होगा अभी मैं उस पर कुछ बात नहीं कहना चाहता, लेकिन दूरगामी असर इस पे होने वाला है। शरद यादव जी, बहुत पुरानी आप लोगों की मांग है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए। मैं अभी इस पर कुछ भी नहीं कहना चाहता, बाद में बोलूंगा, लेकिन इतना ही जरूर है कि एक नया राह और रास्ता खुल गया है। तो बिहार में इस जीत में और दूसरी तरफ एक हार ने सवालों का एक पिटारा खोला है और हम पूछने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, समय बहुत कम है। प्रदीप जी, ये बताइए कि फिलहाल इनटॉलरेंस को लेकर पूरे देश में जो बहस चल रही है, उससे भी ज्यादा सोशल मीडिया पे जो एक अलग तरह की जंग लड़ी जा रही है, बिहार इलेक्शन के बाद तब्दीली आएगी? देखिए, तब्दीली तो नहीं आएगी। ये सवाल है भी जो मालवीय कह रहे थे कि अपोजिशन को एक कंस्ट्रक्टिव भूमिका अदा करनी चाहिए। अगर इतिहास देखिए भारतीय जनता पार्टी अपना, जब वो अपोजिशन पार्टी थी तो उन्होंने कितना डिस्टर्ब किया संसद की कार्रवाई को, उसका आंकड़ा कहीं ज्यादा और जस्टिफाई भी किया और हर सवाल पर मुझे याद है कि मुख्य प्रवक्ता रविशंकर प्रधानमंत्री से नीचे कोई जवाब मांगते ही नहीं थे। तो ये जो अपने अतीत की चीजें इनको और जो माहौल क्रिएट किया जा रहा है, जो बुनियादी एजेंडा, जो हिडन एजेंडा है, जिसको इनके कुछ भगवा सांसद, साधु संत लोग जो सामने प्रोजेक्ट करने की जरूरत महसूस रखते हैं, वो बहुत खतरनाक प्रवृत्ति की ओर बढ़ रहा है देश। ऐसे में वैज्ञानिक, इतिहासकार, लेखक, फिल्मकार अपने पुरस्कार वापस कर रहे हैं। एक देश के अंदर एक असहिष्णुता का महत्व है। अब बीजेपी अध्यक्ष जब ये कहते हैं कि बिहार में अगर भाजपा हारेगी तो पाकिस्तान में भारतीय जनता पार्टी, ये उनका अपमान है। अब आरएसएस की रणनीति क्या होगी, किस तरह से आगे बढ़ेंगे इस हार के बाद? अभी तक तो जीत ही मिल रही थी। आरएसएस बहुत गंभीरता के साथ अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह और पूरी बीजेपी से को संदेश देगा कि आपका डेवलपमेंट और ग्रोथ का एजेंडा तो बहुत हो गया, आप हमारा जो है, हमारा जो हिंदुत्व का एजेंडा है उसी से आप जीतते हो, और आप लोकसभा के चुनाव भी हमारे एजेंडे से जीते थे और हमारे एजेंडे पे लौटिए। और देखिए, जो रांची में जिस तरह की कॉन्फ्रेंस हुई है संघ की, और जिसमें उसमें मुसलमानों की आबादी को लेकर के क्वेश्चन किया गया है और नई जनसंख्या नीति बनाने की बात कही गई है। राम मंदिर का सवाल फिर गर्म होगा क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनाव 2017 में आसन्न है। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात, यूनिफॉर्म सिविल कोड को तो अब रिलीजन बेस्ड, तो अब वो पॉलिटिक्स मुझे लगता है और गर्म होने की आशंका है। आरएसएस का दबाव बढ़ेगा भाजपा के ऊपर कि वो वापस अपने पुराने बढ़ने वाली है, जिसको कहते हैं, उसकी तरफ बढ़े। No, but the point being, was the BJP its own Achilles heel, and did the BJP itself bring, or the fringe elements, bring the BJP down in Bihar? They will try to. No, but did they bring? Yeah, of course. The statements of Giriraj Singh, the statements of I think Adityanath and Sadhvi Prachi after Dadri incidents, Sangeet Som, Mahesh Sharma. The number of ministers. You see, but is this brand of politics going to work? Because this is something that they did after the third phase of polling. But after that, if you look at the fifth phase, the numbers in front of us in the fifth phase, 57 seats, 38 the Grand Alliance has won, the NDA has won only 18. So is this going to continue in the future? I don't think so. देखिए, प्रॉब्लम क्या है कि जो ये जिस एलिमेंट की हम बात कर रहे हैं, एक्सट्रीमिस्ट एंड फैनेटिक एलिमेंट्स,
उनका माइंडसेट एंड थॉट प्रोसेस इज नॉट दैट वी आर थिंकिंग कि अरे वो कोर्स करेक्शन करें। उनका तो कहना है कि आप हमारे रास्ते पर नहीं चले इसलिए आप हारे। दैट इज द इशू। हम चर्चा इस बात पे कर रहे हैं कि यू मस्ट रिमेंबर इंडिया शाइनिंग, ये आरएसएस ने फाइनल कमेंट किया था, इंडिया शाइनिंग करने के कारण ही ये लोकसभा का चुनाव हारा। और ये और बीजेपी के लिए, आरएसएस के लिए फिर अगर बात कहने की बात है बिहार चुनाव के बाद, भाषा में आपने छोड़ दिया। थोड़ा क्रूड भाषा में कहूं कि वो कहेंगे कि हमने 2014 में हिंदू यादव और कुर्मी और जितने पिछड़े थे उन्हें हिंदू बना दिया था, आपने फिर उनको पिछड़ा बना दिया। चलिए, फिलहाल जो है जनता को तय करना है। काफी जो है ईमानदाराना बहस यहाँ पर हो चुकी है। काफी ऐसे मुद्दे की अक्सर मीडिया में सामने उस तरह से नहीं आते हैं। यहाँ हमने बहस करने की कोशिश की। बहुत सारे सवाल हमारे पास बाकी हैं जिन पर बहस करनी बाकी है। फिलहाल स्टूडियो में यहाँ के लिए इतना ही, लेकिन जल्द हम फिर हाजिर होंगे। नमस्कार। आजादी के बाद कैसे बदला परिवेश, कैसे बनी संसद, कैसे उठा देश। When the world sleeps, India will awake to life and freedom. कौन थे वो लोग जो दे गए हमको शानदार विरासत, लोकतंत्र की मजबूत इमारत। राज्यसभा टेलीविजन। आपका मुद्दा, आपका हाल, सरकार तक पहुंचेगा आपका सवाल। राज्यसभा टीवी बनेगा आपकी आवाज। Tradition dating back centuries. A cultural heritage that inspires and warms at once. Magic that awes. Rajya Sabha Television brings you events that embrace the wonders of India's classical arts. Conversations with the biggest names in the culture and music. Rajya Sabha Television, democracy at work. India's star shining in global affairs. The professional army of any country does not have faith, piety and jihad in the name of God. From regional power to assertive global leader. Sri Lanka denies that these violations took place. We want India to be a superpower. We have been doing everything for decades and we have been giving to India everything best we have. Experts debate the nation's foreign policy. We should not have any political preference of ours so far as Nepal is concerned. Taliban were the teachers of Pakistan. Whatever people may say, they were created by Pakistan. India's World with Bharat Bhushan on Rajya Sabha Television. Hello, I am Sean Russell. I'm Tracy Shilshi and you're watching News Tonight. Together with the team of our dedicated professionals from across various fields. This is Shyam Sundar, Vishal Dahiya, Akhilesh Suman, Frank Pereira from Beijing, China. Kriti Mishra for Rajya Sabha Television. We bring to you the news that matters here on Rajya Sabha TV. Very good afternoon. You're watching Rajya Sabha TV. I'm Tina Jha, getting you live update of the Bihar election results right from the Rajya Sabha TV newsroom. The big story of the hour. The Nitish Lalu alliance is heading for a decisive victory in Bihar. The JDU-RJD Congress Mahagathbandhan is leading in 157 seats, while the NDA is trailing a distant second at only 76 seats.
Whereas BJP leaders have conceded defeat when the trends became clear by 10 a.m. in Patna and other cities of Bihar. JDU and RJD supporters celebrated the news that Nitish Kumar is returning as Chief Minister for the third term. Most of the JDU ministers are leading in their respective constituencies. Prime Minister Narendra Modi congratulated Nitish Kumar after the results. Shiv Sena Sanjay Rao, Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal and former Jammu and Kashmir Chief Minister Omar Abdullah were among the first to send congratulatory messages to Nitish Kumar and Lalu Prasad. That's it from us at the moment. Let's go across to our panel waiting there in Patna. Thanks, Tina, and a very good afternoon once again to our viewers who are joining from elsewhere. It's been a cracker of an election. All exit polls have been defied. It's basically split wide open now. It's very clear that JDU has trumped NDA and Nitish Kumar is poised as a Chief Minister for a third term. Many are saying that Bihar has already started celebrating its Diwali. Kurbanji, I remember one of Modi's rally in which he said that Bihar is going to celebrate two Diwalis. दो दिवाली मनाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। नरेंद्र मोदी साहब ने यही कहा था, और लेकिन किस संदर्भ में वो कह रहे थे, शायद आज वो पछता रहे होंगे। बहरहाल आज बिहार विधानसभा चुनावों के रुझान तकरीबन स्पष्ट हैं, नतीजे भी आने शुरू हो गए हैं, और उससे जो तस्वीर उभर करके आ रही है वो बिल्कुल साफ है कि जनता दल यू, आरजेडी, कांग्रेस महागठबंधन को 155 सीटों पर विजय मिलती हुई दिखाई दे रही है, ये रुझान बता रहे हैं। जबकि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाला एनडीए गठबंधन 77 सीटों पर ही सिमट कर रह गया, यानी सीधे तौर पे अगर देखें तो आधे का फर्क है, जबकि 11 सीटें अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। यहाँ बिहार विधानसभा के प्रांगण में हम राज्यसभा कार्यक्रम की इस विशेष प्रस्तुति के साथ हाजिर हैं, और हमारे साथ एक खास पैनल है। हमारे साथ हैं यहाँ नवल शर्मा साहब, आप जनता दल यूनाइटेड के स्पोक्स पर्सन हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं फैजान अहमद साहब, आप पायनियर के ब्यूरो चीफ हैं, और अजय कुमार साहब हैं वरिष्ठ पत्रकार, प्रभात खबर के संपादक। बहुत बहुत स्वागत आपका। और साथ ही हमारे साथ दिल्ली स्टूडियो में मीम अफजल साहब, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, और गोपाल कृष्ण अग्रवाल, भारतीय जनता पार्टी के भी प्रवक्ता हमारे साथ हैं। सबसे पहले मैं गोपाल कृष्ण अग्रवाल आपसे जानना चाहूंगा कि क्या आप अब शालीनता के साथ ये हार स्वीकार कर रहे हैं, मान रहे हैं कि यहाँ मोदी जी का जादू नहीं चला? नहीं, देखिए ये दो चीजें हैं। हार की जहां तक बात है, ये ठीक है कि ये मैंडेट नीतीश कुमार जी के लिए, जेडीयू प्लस के लिए है, महागठबंधन के लिए, और कहीं ना कहीं बिहार की जनता ने यह कहा है कि वो उनको पसंद करते हैं। यहाँ इसीलिए प्रधानमंत्री ने अपना उनको संदेश भी दे दिया बधाई का। तो अब बात यह है कि हम जो अल्टीमेटली ये, लेकिन मोदी जी के लिए या पार्टी के लिए ये जब भी कोई इलेक्शन होता है वो पूरी पार्टी लड़ती है। हमारे 10-15 मंत्री भी वहां थे, पूरी पार्टी की मशीनरी वहां पे थी, और हर इलेक्शंस को हम उसी तरह लड़ते हैं। और हार जीत एक बिहार में जरूर उसका इफेक्ट होता है, उसको एसिमुलेट करते हैं। वो लर्निंग एक्सपीरियंस है, और उसमें किस एजेंडा में हम कहाँ विफल हुए, कहाँ हमारा कम्युनिकेशन रॉन्ग हुआ, और कहाँ पे हम जो जनता से प्रॉपरली अपनी बात। Mr. Agarwal, you made a fair point, but what has been the biggest learning lesson for you from Bihar election so far? I think the biggest lesson, it is not only alone for BJP, but it is for the nation also, that they want an economic agenda to be the mainframe election module where they want to grow. But the whole perception, when you are fighting an election, you fight an election of perception, battle of perception, and somewhere down the line, that battle of perception we could not communicate that it gives the message. But ultimately, in Bihar particular, it cannot be taken case as a universalized. You cannot universalize it, because we had several good results. Just now, 2 days back, there was a good result in Kerala. हम आते हैं आपके पास में। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता मीम अफजल साहब भी मौजूद हैं दिल्ली स्टूडियो से ही। मीम अफजल साहब, क्या आप लोग इस बिहार चुनावों से कोई सबक सीखेंगे कि जिस तरह से आपने यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट किया, एक प्रयोग किया, क्या राष्ट्रीय राजनीति पे ये एक शुरुआत मानी जा सकती है बीजेपी एनडीए के खिलाफ?
देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक जो राजनीति की है उसमें शुरू में उसको कामयाबी जरूर मिली थी, और चूंकि पार्लियामेंट का चुनाव उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से जीता था तो उसका असर था। लेकिन 1.5 साल की परफॉर्मेंस ने यह साबित कर दिया, अभी बहुत सारा जिक्र कर रहे हैं और वो बातें अपनी जगह पर बड़ी अहम हो सकती हैं जो बिहार के चुनाव में जिनका रोल था। मिसाल के तौर पर मोहन भागवत जी का रिजर्वेशन को लेकर के बयान, बीफ का मामला, प्रधानमंत्री जी का ये कहना कि 5% लोगों को आपका 5% रिजर्वेशन लेकर के किसी और धर्म के लोगों को दे दिया जाएगा, या अमित शाह जी का कहना कि पाकिस्तान में पटाखे चलेंगे। पता नहीं आज पटाखे चले या नहीं चले, किसी ने ये रिपोर्ट नहीं दिखाई कि पाकिस्तान में कहीं पटाखे चले हों तो कम से कम टेलीविजन को दिखाना चाहिए। इससे भी ये साबित होगा कि भारतीय जनता पार्टी किस किस्म की राजनीति करना चाहती थी, उसको रिजेक्ट। जहां तक आपने कहा कि क्या इससे सबक सीखेंगे, मैं समझता हूं कि आप तो कुर्बान साहब खुद जानते हैं और आपके वालिद मोहतरम उस पूरे कंसेप्ट से, सोशल जस्टिस का जो कंसेप्ट है उससे जुड़े रहे और उन्होंने बहुत काम किया है इस मामले में। ये जो सोशल जस्टिस का जो एक पूरा कंसेप्ट था वो बिहार से शुरू हुआ था और फिर पूरे देश तक फैला था और बिहार के अंदर उसको बड़ी कामयाबी मिली थी। लेकिन जब उस सोशल जस्टिस के कंसेप्ट में इख्तिलाफात आए और लालू जी और नीतीश जी अलग हुए तो आप देखते हैं कि क्या हुआ, और उसके नतीजे में भारतीय जनता पार्टी को अपने पैर जमाने का मौका मिला। मैं समझता हूं कि आज इससे सबक ही सीखा है, और मैं यहाँ कांग्रेस को भी तारीफ करूंगा, इसलिए नहीं कि मैं उस पार्टी का प्रवक्ता हूं, मैं ईमानदारी से महसूस करता हूं कांग्रेस ने इस चीज को बहुत सीरियसली लिया कि सोशल जस्टिस की जो लड़ाई है, कम्युनल फोर्सेस की जो लड़ाई है, कम्युनल फोर्सेस के खिलाफ जो लड़ाई है, उसके अंदर कांग्रेस को अगर कहीं कुर्बानी भी देना पड़े तो वो देगी और इस कंसेप्ट को आगे बढ़ाने में मदद करेगी, और ऐसा कांग्रेस ने किया और आप देख रहे हैं उसका भी नतीजा। देखिए, Right. No, let me now bring in Ajay Kumar ji here. What Meem Afzal was saying that the clock has been turned back. People were talking about caste versus arithmetic, but here we've seen that the alliance, the caste alliance which was seen in Mahagathbandhan, that has turned out to be a winner. So, how is this, the clock which has been turned back, how do you see it different this time? The way it was put forward to the people, it was a mix of caste and development, but the earlier references which we have seen was only an inclusion of caste. So do you see that differently? नहीं, बिल्कुल फर्क है, और मुझे लगता है कि जो समय का जो पहिया है आप उसको पीछे नहीं घुमा सकते हैं। आप सोशल जस्टिस के साथ बिल्कुल आपको एक अपनी पॉलिटिक्स को आगे ले जाना है, लेकिन उसके साथ साथ जो डेवलपमेंट का इशू है, आप देखिए कि पर कैपिटा इनकम हो, बाकी जो चीजें हैं उसमें बिहार अभी भी नेशनल रेशियो से काफी पीछे है। तो आपको उस पर काम करना पड़ेगा। ये आने वाले 5 साल में जो नीतीश जी के नेतृत्व में बनने जा रही है सरकार, वो दिखाना पड़ेगा। क्योंकि आप देखिए कि इस पूरे चुनाव में, पूरे इलेक्शन के दौरान ट्रिक के जरिए मुझे लगता है कि ट्रिक के जरिए एक चुनाव जीतने की कोशिश हुई थी जो एनडीए की। I will like to bring in Naval ji here. Naval ji, मुझे ये बताइए कि we congratulate you for the way JDU has performed in this election, but your second partner, that is RJD, is a little ahead than what the JDU seats are projecting. How do we see this? I mean, is Lalu Prasad Yadav going to have an upper hand on JDU? Of course, when you have Nitish Kumar as the Chief Minister, but how are the equations really going to play out between RJD and JDU? नहीं, मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी और लालू यादव जी को अलग अलग देखने के बजाय सामूहिक रूप से बिहार में महागठबंधन की जीत हुई है, इस रूप में व्याख्या करने की आवश्यकता है। भविष्य में सरकार की रूपरेखा क्या होगी, सरकार में किनकी भागीदारी क्या होगी। लेकिन जब नीतीश जी का फेस और लालू के बेस की बात हो रही है तो लालू के बेस में इट्स मोस्टली द बैकवर्ड्स हुआ देयर, और हमने पहले 90s में देखा था कि लालू जी ने किस तरह से एक सोशल रेवोल्यूशनरी की तरह आगे बढ़ के और ओबीसीज को एक पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन दिया था। सो आर यू हिंटिंग एट द फैक्ट दैट आर वी गोइंग टू सी अ सेकंड इनकार्नेशन ऑफ Lalu Prasad Yadav? Nitish ji, of course, is associated with development. Are we going to see another resurrection of Lalu Yadav in a different form altogether? हाँ भी और ना भी। ओके, ना क्यों, पहले ये बताइए। ना इसलिए कि हमारी जीत को प्रायः बताया जाता है कि बिहार में जातिवाद की जीत हुई है। ओके। अगर आज बिहार में एनडीए की जीत होती तो बोला जाता कि बिहार में विकास की जीत हुई है। यह एक मिथ्या है, इस मिथ्या को सुधारने की आवश्यकता है। अगर हमारी जीत हुई है तो लालू यादव जी का एक सोशल आंदोलनकारी के रूप में इनकारनेशन हो अथवा मत हो,
लेकिन बिहार के आम आवाम की जीत हुई है, बिहार के गरीब और पिछड़े तबके की जीत हुई है। उस तबके की जीत हुई है जो वर्षों से सामाजिक सम्मान की लड़ाई लड़ रहा था, और उस सामाजिक सम्मान की लड़ाई की अगुवाई लालू यादव जी ने की थी। फैजान साहब, आप इन नतीजों को, हालांकि अभी रुझान है, इनको नतीजे कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन लगता है कि यही शायद नतीजों में परिवर्तित होंगे। आप इसका आकलन किस तरह से करते हैं? देखिए, ये जो रिजल्ट होने वाले हैं या जिस तरह के इंडिकेशन आए हैं, ये मतलब मैं कहूंगा कि अनएक्सपेक्टेड लाइंस हैं ये, क्योंकि हो सकता है कि एग्जिट पोल में कुछ और आ रहा हो, सेफोलॉजिस्ट कुछ और कह रहे हो, पोल पंडित का कुछ और नजरिया रहा हो, लेकिन जहां तक मेरा अपना तजुर्बा, और मैंने जो बिहार में कई जगह मैंने घूमा, तो मुझे ये लग रहा था कि महागठबंधन को लगभग इतनी सीटें या इससे कुछ कम बेश सीटें आ सकती हैं, क्योंकि जिस तरह का माहौल पूरे इलेक्शन में बना रहा और जिस तरह का बनाने की कोशिश की गई, चाहे वो कास्ट के लाइन पर हो, चाहे वो कम्युनल लाइन पर हो, या बहुत से नन इश्यूज को लाके जिस तरह का माहौल बनाने की कोशिश की गई, वो माहौल बन नहीं सका। But let me bring in Gopal Krishnan Agarwal if he is there on the line. Mr. Agarwal, we saw that the beginning of the year was not very good for BJP. We saw you lost elections in Delhi, and now towards the fag end of the year, it's November, and you have lost Bihar, which of course is a big election, a significant election. Can the BJP, now the biggest question is, can the BJP really make inroads into the east? You have elections coming up in Assam. How are you really going to strategize the party? And is Narendra Modi going to be overexposed again the way he has been overexposed during Bihar elections? He is our brand, he is our leader. We will move ahead in the same strategy, because it has been isolated. One election cannot decide who is our leader and how we have to move ahead. Ultimately, we should not jump the gun. This Bihar election is an election of caste. यहाँ पे सारा the people have given. If you go into the arithmetic of the Mahagठबंधन, it was based only on caste arithmetic, and that is the winning. Mr. Agarwal, just hear me out. Mr. Agarwal, when you were in the opposition, you said that whenever Congress is losing an election, Sonia Gandhi or Rahul Gandhi should own up and say that yes, it was their responsibility because of which they lost elections. So who is going to own up to the responsibility today in the BJP camp? Is Amit Shah going to own up, or is it going to be Narendra Modi? Who's going to be the fall guy? This is the difference between what BJP is and Congress and other political parties in India is. We are a party with democracy. We have the collective leadership. Our leaders are defined. We have a brand, and we move ahead with a leadership basis. But ultimately, it is the whole machinery of the party which fights the election. Our 10-15 ministers were there. The whole party was there. And then ultimately, if we have won 8 elections and lost 1, so how can you equate those things? Ultimately, everybody will take the responsibility. Where we went wrong will be taken care of. But you cannot say that by losing the Bihar election, the Gopal Agarwal suffer in other states also. गोपाल अग्रवाल साहब, अभी आपने इस जीत का श्रेय नीतीश कुमार को दिया, उनके विकास के एजेंडे को दिया, लेकिन इस चुनाव का मैसेज है लालू यादव, लेकिन लालू यादव का नाम लेने से आप गुरेज कर रहे हैं। क्या आप नहीं मानते कि लालू यादव बिहार में एक नई राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरे हैं? देखिए, अगर हम इस इलेक्शन को एनालाइज करें तो क्या ये इलेक्शन जीतने के कारण लालू यादव विकास पुरुष हो गए? क्या उनका एजेंडा जो डिविजिव था वो नहीं हुआ? क्या वो जातिगत आधार पर इलेक्शन नहीं लड़े? क्या वो उनके ऊपर कोर्ट केसेस हैं, उन्हें कोर्ट ने डिबार किया हुआ, इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन से डिबार किया हुआ? ये फैक्ट को हम झुटला कैसे सकते हैं? अगर जनता ने एक बार उनकी सीट को दे दिया तो कोई तो कारण होगा कि इन सारे फैक्ट को, जनता के फैसले को आप नकार रहे हैं। लालू यादव की जीत नहीं, लालू जी जीते हैं, उन्हें ज्यादा वोट मिले लेकिन उसके कारण का एनालिसिस तो करना ही होगा। उनका कारण केवल ये नहीं हो सकता कि उनके सारे जो पाप हैं वो धुल गए इस इलेक्शन से। इलेक्शन इन इटसेल्फ कैनॉट वॉश अवे ऑल हिज सिंस विच ही हैज कमिटेड। जंगल राज नीतीश कुमार जी ने कहा था, आज सारी देश जानती है कि किस स्तर की वो राजनीति करते हैं,
तो यह फैक्ट तो नहीं झूठा है। एक मिनट गोपाल जी, नवल जी वांट्स टू से समथिंग। गोपाल जी, मैं बड़ी विनम्रता से आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि अब तो कम से कम जंगल राज वाली गलती सुधार लीजिए। बिहार की जनता ने जंगल राज के आपके इस मिथ्या प्रचार का जोरदार जवाब दिया है। अब कम से कम झूठा और भ्रामक प्रचार करने की कलाबाजी से बाज आइए। अब जमीन पर उतरिए, आपको धरातल पर उतरने की आवश्यकता है, जमीनी वास्तविकताओं को समझने की आवश्यकता है। और मुझे ऐसा लगता है कि जब आपकी पार्टी बिहार में पराजय के कारणों की समीक्षा करेगी तो सबसे बड़ा कारण उभर कर यह सामने आएगा कि आपने जंगल राज कहकर बिहार के गरीब गुरबे के मुंह पर जोरदार तमाचा मारा था, जिसकी प्रतिध्वनि अभी आपको सुनाई दे रही है। रेस्पॉन्ड मिस्टर अग्रवाल, प्लीज रेस्पॉन्ड। नहीं, ऐसी बात नहीं है। जंगल राज हमने नहीं कहा, नीतीश कुमार ने खुद कहा था, हमने उनको रिकोट किया था। जंगल राज अकेले हम अगर कह रहे होते तो बात अलग होती, तब तो ये बात कह सकते थे कि हमने कभी नहीं कहा था। लगाया, लेकिन कोर्ट का फैसला है। नीतीश कुमार जी ने कहा था। Fair enough, Mr. Agarwal. Now let me bring in Faizan Ahmed here. Mr. Faizan, the allies of NDA, they have started, taking their pound of flesh now. Sanjay Raut has already made a political statement saying that this is a turning point, the new turning point in the national politics. Do you agree with what he's saying? Oh, yes, definitely what he has said. And you see, the Shiv Sena had contested in this election separately, not aligned with BJP. So, if he is saying that this will have an implication on the national level, he is right. And you see, who made this election a nationally focused election? Not Nitish Kumar. I was reading on Facebook, there was a comment that Prime Minister Narendra Modi came as a Prime Minister and after the elections he's almost left as a regional leader. Would you really agree with these kind of comments which are coming up? अजय जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अब ये स्पष्ट हो गया है, रुझान सारे सामने आ गए हैं, नई सरकार के गठन की प्रक्रिया 1-2 दिन में शुरू हो जाएगी और जाहिर है कि अमित शाह जी कह रहे थे कि 2 बजे नीतीश कुमार आखिरी बार मुख्यमंत्री से इस्तीफा देने के लिए जाएंगे राजभवन, लेकिन शायद वो अब पासा पलट गया है। मगर जो विरोधाभास रहे हैं, जो नीतीश जी के और लालू जी की राजनीति के पिछले 15 साल के विरोधाभास रहे हैं, उसके चलते आपको लगता है कि ये जो नई सरकार बनने जा रही है पटना में, बिहार में, वो एक स्थायी सरकार होगी, एक उसमें राजनीतिक मतभेद नहीं होंगे और इस बात का खतरा नहीं रहेगा कि ये गठबंधन गिर जाएगा? नहीं, मुझे लगता है कि तमाम अंतर्विरोधों और मतभेदों के बाद भी ये चलाने की मजबूरी भी होगी एक तरह से, और न सिर्फ मजबूरी बल्कि परफॉर्म करके दिखाना भी होगा। लालू प्रसाद की बात करें तो आप देखें कि उनके पास बहुत ज्यादा विकल्प नहीं है। उनका पुनः वापसी एक तरह से हुई है। 2010 के इलेक्शन में उनका परफॉर्मेंस देखें या 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान, तो उनके आधार में लगातार गिरावट आई है, सीटें भी घटी हैं। अब जो विकल्प मुझे जो समझ में आ रही है बात, वो कि अभी जो बिहार की जनता ने मैंडेट दिया है, आप इसको कैसे बेहतरी के लिए, बिहार की बेहतरी के लिए, बिहार के डेवलपमेंट के लिए, और जो आपका कोर इशू है समावेशी विकास, इसको आप कहां तक पहुंचा पाते हैं लोगों तक, ये सबसे बड़ा इशू रहेगा। और मुझे लगता है कि जो लीडरशिप है इस जमात का, इस महागठबंधन का, उसको जरूर यह जो आशंका है, ऐसे चुनाव के ठीक पहले भी ये आशंका जाहिर की जा रही थी कि दोनों का जो व्यक्तित्व है उसमें टकराव होगा, दोनों के जो समझने का, एक देखने का जो नजरिया है, उसमें असहमति के बहुत सारे कारण उभर सकते हैं। In fact, Meem Afzal ji is there with us. Let me ask him, Mr. Meem Afzal, as what Ajay is pointing out, that it's all, I mean, there were a lot of questions whether the grandeur of the Grand Alliance will stay on or not. Whole lot of questions were there whether allies will stick on or not. So all those myths and all those suspicions seem to be really wiped out. And as Ajay was pointing out, that it's almost like a national compulsion now for all the parties to stick together and take forward this Grand Alliance towards a bigger role, a bigger objective. What is the role of Congress really going to be, and how is it really going to play out, given the fact that winter session is just around the corner? ये सोशल जस्टिस और कम्युनलिज्म के खिलाफ और सोशल जस्टिस के फेवर में कांग्रेस भी उन पार्टियों के साथ खड़ी हुई। दूसरी एक अहम बात मैं आपको बताता हूं, भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के बारे में कहा जाता है कि नेचुरल अलाइज हैं।
लेकिन आज ये दोनों किस तरह से एक दूसरे के खिलाफ हैं ये आप देख सकते हैं। इसी तरह से आज मैं कहूंगा कि लालू यादव जी और नीतीश कुमार जी भी नेचुरल अलायंस उनका हुआ है, वो नेचुरल अलाई हैं। यकीनन बीच में उनमें इख्तलाफ हुआ और वो लोग अलग हुए और उसका नुकसान उठाया है। जाहिर है इससे उनको सबक सीखना ही सीखना है। इसलिए मुझे आगे चलकर जो वादे किए गए हैं उनके पूरा करने में मुझे कोई मजाका और किसी तरह का शुभा नहीं है। We could also see these kind of alliances. So, Mir Afzal, are you hinting at the fact that we could also see some of unnatural alliances becoming natural, like Samajwadi Party coming up with BSP in UP, or in West Bengal we could see Left and TMC coming up? Could you also see a possibility of that happening? देखिए, वहां पर उन पार्टियों का, दोनों ही पार्टियों का बड़ा अहम रोल है। लेकिन अभी जो एक अलायंस के अंदर जो एक तरह से कहना चाहिए मुलायम सिंह यादव जी के कहने पर यह शुरू हुआ और उन्होंने इसके अंदर कुछ अहम भी रोल अदा किया और उसके बाद वो जिस तरह से अलहदा हुए और उसका रिजल्ट देख लीजिए। एक और अहम बात बताऊंगा मैं, वो ये है कि बिहार के अवाम ने, चाहे वो हिंदुओं की कम्युनल राजनीति, हिंदुओं के नाम पर कम्युनल राजनीति करने वाले हों या मुसलमानों के नाम पर कम्युनल राजनीति करने वाले, दोनों को रिजेक्ट किया है। मुझे उम्मीद है कि एमआईएम को शायद एक भी सीट नहीं मिलेगी और ये इस बात का प्रमाण है और इस बात का सबूत है कि बिहार के अवाम बहुत ज्यादा पॉलिटिकली मैच्योर हैं। वो सोशल अलायंस की वैल्यू को जानते हैं, उसके जरिए कमजोर, गरीब, गुरबा आगे किस तरह बढ़ेंगे उसको वो समझते हैं। इसीलिए आज भारतीय जनता पार्टी, अब एक बात और बताऊं मैं आपको, हम बहुत सारे जिक्र किए, एक जिक्र करना भूल गए। भारतीय जनता पार्टी की क्या परफॉर्मेंस है, क्या आप जानते हैं? क्या आप इससे इत्तेफाक नहीं करेंगे कि दाल जो 70 रुपए बिक रही थी, 60 रुपए बिक रही थी, 65 रुपए बिक रही थी, वो जब 200 रुपए पर पहुंचेगी तो बिहार के गरीब जनता कैसे उसके ऊपर रिएक्ट करेगी? महंगाई जितनी बुरी तरह से बढ़ी है, तेल के दाम सस्ते होने के बावजूद महंगाई बढ़ती चली गई और भारतीय जनता पार्टी झूठा प्रोपेगेंडा करती रही। अरे भाई, देश तरक्की नहीं कर रहा है, कुछ लोग तरक्की कर रहे हैं। चुनाव का एक और बहुत ही स्पष्ट संदेश है। बिहार बहुत राजनीतिक रूप से परिपक्व राज्य कहा जाता है। ये बात हो रही थी कि नेक टू नेक है, मुकाबला कांटे का है, टक्कर कांटे की है, लेकिन बहुत ही स्पष्ट जनादेश दिया है बिहार की जनता ने और इस गठबंधन को अगले 5 साल सरकार चलाने का एक तरीके से मैंडेट दिया है। अब ये देखना होगा कि आगे आने वाले दिनों में ये जो दल इसमें शामिल है वो इस मैंडेट का कितना सम्मान कर पाते हैं या फिर ये कि उसी तरह के दिन बिहार की जनता को देखने पड़ेंगे जैसे पिछले 15-20 सालों में वो देखते रहे और अलग अलग ढंग से राजनीतिक ध्रुवीकरण होते रहे हैं। तो इसी के साथ हम यहां से वापस दिल्ली स्टूडियो चलते हैं। बिहार विधानसभा के इस प्रांगण में राज्यसभा टेलीविजन की इस खास प्रस्तुति में इतना ही। नमस्कार।